Hello everyone, welcome back to UXIS. Today we will look, of course, the Council of Minister or the executive part of the state government from where we have left in the last lecture. And also we will move to the judicial system of India, like Supreme Court, High Court, and the subordinate courts. So we will discuss about the judiciary today also itself. And we were discussing about the Council of Ministers. So Article number 163 talks about Council of Ministers to aid and advise to the governor and basically through the chief minister. So the council governor of the state act on the aid and advice of the Council of Ministers as headed by the chief minister. Of course, it is the same replica of the what the system is applied on the uh, executive part of the central government or the union government. And here the governor has the discretionary power in certain situation. For example, the Article 164 uh, talks about the appointment of the chief minister and the minister, council of ministers. And the governor appoints the chief minister on the advice of the appoints by the other minister as well, what we have discussed earlier also. Now, Article number 200 says that the assent to the bill, like governor can assent to the bill or withhold the bill and reserve the bill. So basically, these all points I have already discussed in yesterday's class. Now, the most important point about is like Article number 356, as you all know, there is a president rule or the emperor state emergency. So the governor may recommend the president rules in the state if there is a failure of constitutional machinery. So what is the point that you have to remember that the failure of the constitutional machinery. Of course, this is the vague term, and only the judiciary can interpret it because it is vague in terms of like for me, it can be anything. For the governor, it can be anything, and for the opposition, it can be anything. But overall, the real interpreter is basically a Supreme Court and the High Court also. Now, so the governor may recommend the president rule for imposing the president rule or the state emergency if there is any kind of failure of the constitutional machinery. It is given under the 356. Now, if we talk about the what is the role and importance of the governor, so as the governor link between the center and the state and functions as the constitutional head, as we all know that it is a constitutional post, and the president of India is the constitutional head and the head of the state of the India overall. So the constitutional head or the head of the particular state wise, like and the states is the governor in the each states, and the real power lies with the elected government like CM and the Council of Ministers itself. Now, it ensures the constitutional machinery in the state function properly. So, as you talked yesterday itself, that the governor is in its aura, like he preferred to choose the constitutional function in the state machinery. So that is basically the role and importance of the governor here. Now, Council of Ministers, it starts from like 163 talks about act as need advice. There is a Article 164 which talks about the appointment of the chief minister, as just told you. Now there is a advocate general, as we all know that the attorney general in the union level. So that same way, advocate general is also provided by the constitution uh, uh, in the state particularly. Now, Article 165 talks about it is the state's highest law official, as the Attorney General is the India's highest law official. In the same kind, the Advocate General is the highest law officer of the state, particular state. Now, Article 166 to 167 says that the conduct of the state business of the duties of the chief minister with respect to the governor. So again, the same change. Now, if we look into the purview of the state legislature overall, then we have to look at the part 6 article from the 168 to 212. It is talking about the state legislature. Now there are two type of state legislature. One is the unicameral and the second is the bicameral. So unicameral, of course, the Vidhan Sabha, or bicameral means the Vidhan Parishad also. These are the same topic I have already discussed, so I will not go into the deep inside it. Now, if we look into the Vidhan Sabha and the Legislative Council,
So, member of legislative council is directly elected by the people by the first past the post system we have talked about. Now, the strength of from the 60 to 500 member can be in a special cases like Sikkim or Goa, it can be less. Now, tenure की बात करें तो tenure is like 5 year or can be dissolved earlier because it is lies in the decision of the chief minister in the state or particularly the council of minister, and it is of course presided by the speaker and the deputy speaker of the Vidhan Sabha or the legislative assembly. Now, if we talk about the powers, what is the power? So, powers is basically it makes the laws and the which is available, which is provided by the constitution in the state list or the concurrent list. As we all know that there is a state list, a union list, and the concurrent list. So, basically, the concurrent list is the list in which both the center and the state will make can make the laws in their particular domain, and state list is particular the list where the state only can make the laws particularly mentioned in the state list. Okay. Now, legislature, of course, the Vidhan Sabha controls the executive via the no confidence motion. As we all know, that in the center level, in the union level, that the Council of Minister is responsible to the Lok Sabha. In the same way, the Council of Minister in the state is responsible to the Vidhan Sabha or the Legislative Assembly. And with the no confidence motion, the executive is under control by the legislature itself is provided these mechanism is provided in the constitution itself. Of course ये बजट पास करते हैं on मनी बिल वगैरह सब कुछ इसी में पास कराया जाता है. नाउ व्हाट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें सो विधान परिषद. सो बेसिकली सारे राज्यों में इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. फॉर 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं. फॉर एग्जांपल आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. नाउ कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन इज लाइक 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए ना. इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें यानी कि 1/3 एमएलए, 1/3 लोकल बॉडीज के और 112 टीचर्स, 112 ग्रेजुएट्स, 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. ये सारी इसकी कंपोजिशंस हैं जो कि इलेक्ट होकर के इनडायरेक्टली आते हैं इनटू विधानसभा, सॉरी विधान परिषद, दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल. टेन्योर की बात करें तो हर इट इज अ परमानेंट बॉडी जस्ट लाइक दी राज्यसभा इन द सेंटर, and 1/3 members retire every 2 years. The same copy and paste like mechanism is there, which is held in the Rajya Sabha in the center level. The same change in the state level, but we have to remember that in the states, the state legislative council or the Vidhan Parishad is not available for the all states. Like it is available, it is made in some states, for example 6 states which I have just talked about. Okay, so we have to remember this. Now, if I talk about who is the presiding officer, so of course the chairman and the deputy chairman elected by them is will be the presiding officer of this legislative council. Now, lawmaking process, like we have already talked about earlier, also that the ordinary bill is basically it can originate in either house. if bicameral है तो विधान परिषद और विधान सभा दोनों में से किसी में भी आ सकती है. And legislative assembly has upper hand in joint disagreement because the legislative has the ultimately power because it has the sanctity of the constitutional constitution itself. Now, मनी बिल की बात करें तो ओनली legislative assembly can introduce and pass it because legislative council can only delay. So the same kind of things happen in here also, that which happens in the Rajya Sabha in the center level. And if I talk about the financial bill, so similar bill is introduced only in the Lok Sabha, for example, in center, and here in the legislative assembly in the state level. Okay. Now, these are the topic we have discussed about the Council of Minister or the state government, particularly, state government, and also the governor, which is one of the most important office of the state machinery or the state government. Now, the most important thing which we have to discuss in the prelims point of view or the exam point of view, that judicial system India का क्या है, like judiciary. So now today I will explain from the Supreme Court itself, like what we have to remember about the judiciary. So as we all have to remember that in India there is a integrated judicial system we have taken. Now what is integrated judicial system? So it is basically सबसे पहले हमारा लोअर और सबऑर्डिनेट जिसको कह सकते हैं सबऑर्डिनेट
जुडिशरी आती है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। फिर उसके ऊपर हायरार्की में आता है हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर में आता है सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज बेसिकली द इंटीग्रेटेड judicial system or judiciary which we have implemented in Indian subcontinent, not subcontinent, of course, in India. Sorry. Now we have to look into it. Like originally, मतलब so सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूँ कि because the most important part जो कि यूनियन गवर्नमेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव के बाद आता है, तो वो आता है हमारा जुडिशरी। तो उसमें इंटीग्रेटेड जुडिशरी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ना सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 124 टू 147 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात की गई है, और ये मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 5 के में। ठीक है, पार्ट 5 में। तो एक बैकग्राउंड हमें ये समझना होगा कि इंटीग्रेटेड जो ये सुप्रीम कोर्ट है, लाइक इसको सबसे पहले 28 जनवरी 1950 में 1950 में सक्सीड किया गया था, बिकॉज इसके पहले क्या था, फेडरल कोड ऑफ इंडिया थी। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से बनी थी। उसको बाद में हमने इंटीग्रेट सक्सीड कर दिया था ऑन दी 28th of January 1950, after the implementation of the constitution from the 26th of January 1950। तो हमने सुप्रीम कोर्ट का गठन किया, या सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आई, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल 124(1) क्या कहता है। एक एक करके आर्टिकल समझते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लाइक 124(1) कहता है कि आप एस्टैब्लिश करोगे, एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 कहता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। 124(3) कहता है कि व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड 124 क्लॉज 4 कहता है कि व्हाट विल बी द रिमूवल प्रोसेस। अभी सब इसको आराम से समझेंगे, पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें किसमें दी हुई है। तो रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात की गई है। सो व्हाट विल बी द रिमूवल प्रोसेस। नाउ आर्टिकल 124 क्लॉज 5 कहता है कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन प्रूफ, इसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 6 कहता है कि ओथ एंड अफर्मेशन कैसे होगी, कौन दिलाएगा, ये सारी चीजें। फिर जो नेक्स्ट आता है, ये आता है आर्टिकल नंबर 124(7)। इसमें कुछ चीजें बार्ड की गई हैं फ्रॉम द प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट। ठीक है, नाउ हमें ये समझना होगा कि एक आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था, लाइक आर्टिकल 124 क्लॉज कैपिटल ए को ऐड किया गया था, जिसमें कहा गया था, ये हमको समझना होगा, नेशनल जुडिशियल जुडिशियल अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कमीशन। अब हो सकता है आपको ये याद आ रहा हो कि ये किसकी बात कर रहा हूं मैं। NJAC 2014 में भारत सरकार ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर करके, देखो कैपिटल ए मैंने बताया था कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद कैपिटल में अगर आप लेटर देख लेते हैं, वो चीजें आपको याद रखनी होंगी कि ये चीजें, ये आर्टिकल, ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो भी है, ये अमेंडमेंट से आया है। और यहीं पे आपको सही समझना होगा कि आर्टिकल 124 कैपिटल ए जो आया है, ये 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भारत सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया था। बट बाद में ये जब जुडिशियल रिव्यू में जाता है और एक पीआईएल दायर होती है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट देखता है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट इसे वाइड डिक्लेयर कर देता है और कहता है 2015 में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। व्हाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का मानना होता है कि ये जुडिशरी के आंतरिक मामलों में एग्जीक्यूटिव का दखल है, या लेजिस्लेचर का दखल है, और इसलिए इसे वाइड करार कर दिया जाता है।
और अब ये अस्तित्व में नहीं है, इसलिए ये जो एक्ट था इसे नलिफाइड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नाउ हमको ये जानना होगा कि आर्टिकल 25 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 25 में सैलरीज एंड अलाउंसेस वगैरह के बारे में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के। आर्टिकल 126 में बात की गई है कि अपॉइंट किया जाएगा। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग जज होगा ना, ये याद रखना। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, एक्टिंग एडहॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में 126 में बात की गई है। आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेस के बारे में बात की गई है। अब देखो, एडहॉक जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं, उनके स्पेसिफिकली उनके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 128 के बारे में बात करूं तो अटेंडेंस अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि आर्टिकल 129 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल नंबर 129 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 130 की बात करें तो सीट्स कहाँ होंगी सुप्रीम कोर्ट की, दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर भी हो सकती है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। आर्टिकल 131 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, व्हाट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 131 में। ठीक है, ये याद रखना, ये भूलना मत, ये आपको पता होना चाहिए। 132 की बात करें तो इसमें एपिलेट जो है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, appellate jurisdiction of the Supreme Court in the appeal from the High Court in certain cases के बारे में बात की गई है। अगेन 133 में भी appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeal of the High Court in the civil matter के बारे में बात की गई है। उसमें अदर मैटर और इसमें अदर सिविल मैटर के बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 134 के बारे में अगर मैं कहूँ तो इसमें क्रिमिनल केसेस के बारे में बात की गई है कि appellate jurisdiction क्या होगा। 135 के बारे में बात करूं तो इसमें अगेन स्पेशल लीव टू द अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। और 136 में स्पेशल लीव टू द अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम बिल्कुल नहीं भूलना है वो है 137 के बारे में, जिसमें जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड बात की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगेन 138 के बारे में बात करूं तो 138 कहता है एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कैसे किया जा सकता है। 139 में रिट्स के बारे में बात की गई है। अब रिट्स का अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल 32 है उसमें मैंने रिट्स के बारे में डिस्कस किया था, वो आप जाकर के लेक्चर देखें। आर्टिकल नंबर 140 के बारे में बात करूं तो ये लॉ डिक्लेयर करता है बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग टू द ऑल कोर्ट की जितने भी लॉज बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सभी कोर्ट्स में बाइंडिंग होंगे। ठीक है। 142 अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपने कई बार सुना होगा। आर्टिकल नंबर 142 कंप्लीट जस्टिस है। ठीक है। कंप्लीट जस्टिस के नाम पे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है और इसी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए भी हैं। आर्टिकल नंबर 143 की बात करूं तो 143 में पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। आर्टिकल नंबर 144 की बात करूं तो सिविल सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट करेगी इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बात किया गया। आर्टिकल नंबर 145 के बारे में बात करूं तो 145 इट्स टॉक्स अबाउट द ऑफिसर एंड द सर्वेंट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 147 के बारे में बात कहूं तो ये इंटरप्रिटेशन के बारे में कहता है कि व्हाट विल बी द हु विल बी द इंटरप्रेटर और इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें बात की गई है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि आर्टिकल्स कौन कौन से यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। अब हमें ये समझना होगा कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बात करें तो बाय प्रेसिडेंट अंडर हिज वारंट और सील, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये विद द सीनियर सीनियर मोस्ट जज ही बनेंगे।
और ये कहीं लिखा नहीं है, ये एक कन्वेंशन चल रहा है कि जो सीनियॉरिटी में सबसे ऊपर होगा उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, और अदर के लिए विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस कलेजियम ऑफ द फोर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कहा गया है। नाउ कलेजियम सिस्टम के बारे में जब भी बात होती है तो हमें कुछ केसेस हैं जो जिन्हें याद रखना जरूरी हो जाता है। सो कलेजियम सिस्टम की अगर बात करूं, कलेजियम सिस्टम में 3 केसेस आए थे। पहला, जैसे कहा जाता है, फर्स्ट जज केस ऑफ 1981, ठीक है? फर्स्ट जज केस ऑफ 1981 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि व्हाइल अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसल्टेशन, कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स द कंकरेंस, यानी कि कंसल्ट करना इज नॉट अ कंकरेंस, कंकरेंस नहीं माना जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव के पास सुप्रीमेसी होगी इन द अपॉइंटमेंट, और द प्राइमेसी होगी इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स, ये प्रोसेस चलता रहा, है ना? और फिर जाके आता है सेकंड केस, यानी कि जैसे कहा गया सेकंड जज केस हमारा 1993 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन इट मींस कंकरेंस, यानी कि जो कंसल्टेशन है उसमें जब कंसल्ट किया जाएगा तो वो कंकरेंस ही माना जाएगा। ये जो पहला आपका फर्स्ट जज केस था उसको उलट दिया। इट मींस द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द कलेजियम इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और पर्टिकुलरली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और यहीं से थर्ड जज केस जब आया, तो थर्ड जज केस जो कि 1998 में आया, उसमें फाइनल ये हुआ कि रीआइटरेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना ही जजमेंट जो सेकंड जज केस में 1993 में दिया गया था। और ये कहा गया कि 5 मेंबर्स की एक बॉडी होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, और ये एक कलेजियम सिस्टम के थ्रू अपने आप कंसल्ट करें, मतलब जब कंसल्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा तो अपना कंकरेंस देंगे, और कंसल्टेशन इट मींस द कंकरेंस होगा, और जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी अपॉइंट होंगे थ्रू द कलेजियम सिस्टम ओनली। और यहीं से ये ओपेक सिस्टम स्टार्ट हुआ, जहाँ पे कलेजियम सिस्टम अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन के निकला है, और इसीलिए हमें यहाँ पे सुधार की जरूरत है। अब इसके आगे कुछ क्वालिफिकेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अदर चीजों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।